Hello, dear students. We shall be looking at the poem To the Cuckoo. A beautiful poem. It's written by William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770 and died in 1850. He was an English poet, one of the most accomplished and influential of England's poets, whose style created a new tradition in poetry. Wordsworth was born on April 7, 1770 in Cockermouth in Cumberland and educated at St. John's College, University of Cambridge. He developed a keen love of nature as a youth, and during school vacation periods, he frequently visited places noted for their scenic beauty. After receiving his degree in 1791, he returned to France, where he became an enthusiastic convert to the ideals of the French Revolution. Although Wordsworth had begun to write poetry while still a schoolboy, none of his poems was published until 1793. He is popularly known as the poet of nature. He wrote poems portraying nature as something divine and spiritual. O blithe newcomer, I have heard hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? While I am lying on the grass, thy twofold stout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and near. Thou babbling only to the vales of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours. Thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery. The same home in my schoolboy days I listened to that cry, which made me look 1,000 ways in bush and thee and tree and sky. To seek thee did I often rove through woods and on the green, and thou wert still a hope, a love still longed for, never seen. And I can listen to thee, yet can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again. O blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee. Dear students, To the Cuckoo is written by William Wordsworth. It's a poem that's addressed to a cuckoo bird. This poem has been written in admiration and glorification of the cuckoo. The cuckoo becomes a symbol of beauty, innocence, and childhood for the poet. The poet hears the cuckoo is singing in a garden. Her song reminds him of the golden days of his childhood. The poet calls the cuckoo a happy stranger. He enjoys her song, but he is unable to see her. The cuckoo is more like a wandering voice than a bird to him. प्यारे बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोइट ऑफ नेचर हैं. जो भी कोई कुदरती नज़ारा होता है उस पे इतनी तारीफ़ें करते हैं कि हमें उन चीज़ों के बारे में भी वो बताते हैं जिन्हें हम आम हालात में इग्नोर करते हैं. जिस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान आम हालात में नहीं जाता, वर्ड्सवर्थ इतनी गहराई से उन चीज़ों को देखते हैं कि हमें कुछ नई चीज़ें दिखाई देती है कुदरती नज़ारों में. और ये पोइम उन्होंने नेचर के बारे में लिखी है. कुकू बर्ड आपने स्प्रिंग सीजन में सुना होगा कि एक जानवर जो वो कुकू कुकू करता रहता है दरख्तों पे बैठकर, और उसके बारे में ये कहता है, ओ ब्लीथ न्यू कमर, आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस. ये कहता है इसको, ओ स्प्रिंग सीजन में नए आने वाले जानवर. ओ ब्लीथ कहते हैं किसी चीरफुल को, हैप्पी को.
कि आपकी आवाज़ मैंने सुनी है और मैं बहुत खुश हो गया। ओ कुकू, शैल आई कॉल दी बर्ड? ओ कुकू बर्ड, क्या मैं तुम्हें एक जानवर बता दूं कि आप एक जानवर हो? और बट ए वेंडरिंग वॉइस, या कि आप सिर्फ कोई एक आवाज़ हो, उसके अलावा आपकी हकीकत कुछ भी नहीं। वेल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, द टू फुल स्टाउट आई हियर। कभी जब मैं घास पे बैठा होता हूँ और आपकी वो दुगनी आवाज़ में सुनता हूँ, कुकू, ये दुगनी आवाज़, ठीक। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एक पहाड़ी से ये गूंजती हुई दूसरी पहाड़ी तक चली जाती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी बहुत दूर दिखाई पड़ती है मुझे और कभी बहुत नज़दीक सुनाई देती है। Though babbling only to the wail of sunshine and of flowers, बैबल कहते हैं तेज़ी से बात करने को या एक्साइटेडली बात करने को, ठीक। और वेल कहते हैं वादी को, वैली को। तो आपकी आवाज़ कभी धूप में सुनता हूँ, वादियों में, तो कभी फ्लावर्स के उन बागों में। Thou bringest unto me a tale of visionary hours, तो आपकी ये आवाज़ जो है, जो मैं सुनता हूँ, तो नए नए ख्यालात मेरे अंदर ये पैदा कर देती है तुम्हारी ये आवाज़। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इसको कहता है कि वेलकम वेलकम वेलकम, आपका खुश आमदीद है इस हमारी दुनिया में। यू आर डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि आप चहीते, एक लाडले हो इस स्प्रिंग के मौसम का। इवन येट दाउ आर टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, ए वॉइस, ए मिस्ट्री, और मेरे लिए आप एक जानवर की हकीकत नहीं रखते हो, मेरे लिए आप एक खूबसूरती हो, एक इनविजिबल थिंग हो, एक आवाज़ हो, एक हकीकत, एक गैर हकीकी चीज़ हो, राजदारी हो। द सेम होम इन माई स्कूल डेज आई लिसन इट टू, तुम्हारी आवाज़ वही आवाज़ है, तुम एक वही चीज़ हो जो मैं अपने स्कूल के दिनों में सुनता था। दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 वेज, बचपन के दिनों में जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता था तो हज़ारों जानिब मैं अब ढूंढता था तुम्हारे वजूद को। इन बुश इन एंड ट्री एंड स्काई, झाड़ियों में, पेड़ों पे, दरख्तों पे, आसमानों में ढूंढता फिरता था तुम्हें। टू सीक दी डिड आई ऑफन रो थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, और आपकी आवाज़ जो है उसके पीछे पीछे मैं घूमता रहता था, और जंगलों में, ग्रीन फील्ड्स में। एंड द वर्ड स्टिल ए होप ए लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, तो कभी तुम्हें मैंने देख नहीं पाया और मेरे लिए तुम एक उम्मीद थी, तुम एक मोहब्बत थी, तुम एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और आज भी मैं तुम्हें सुनता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, तो मैं अपने आप को लिटा देता हूँ किसी प्लेन जगह पे। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, तो मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ और मुझे बचपन के वही दिन याद आ जाते हैं, वही याद ताज़ा हो जाती है जब मैं आपको सुनता था बचपन में। ओ ब्लेस्ड बर्ड, ओ जानवर, द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसबस्टेंशियल फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी, और ये जो अनसबस्टेंशियल कहते हैं जिसकी कोई रियलिटी ना हो, ठीक। और ये इस जानवर को कहता है कि ये जो ज़मीन है जिसमें हम तेज़ चलते हैं, आपके लिए ये एक गैर रियलिटी चीज़ है, कोई गैर यकीनी चीज़ है, एक फेरी प्लेस है, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह है, तुम्हारा घर, ये बहुत अच्छा है ये ज़मीन। और यहाँ पे हमारी पोइम ख़त्म हो जाती है। और इस पोइम में आप देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो हैं काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ों में गुम हो जाता है इस पोइम में, नेचर की तारीफ करते करते। और हम कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्कवर्स इन नेचर एन अनकॉमन पावर which can not only satisfy human beings but also can transform this earth into a homeland for fairies and other supernatural agents. It's proved in this poem to the cuckoo. The poet was wandering in the valley. He heard the sweet voice of cuckoo. He felt delighted. It was spring season. The valley was full of beautiful flowers. Clear sunshine made the atmosphere in the valley serene and enjoyable. The poet, in his extreme gladness, addresses the cuckoo as blithe newcomer. The cuckoo appears first when spring comes to the earth. It sings happily. Cuckoo is addressed as a blessed bird in the last lines. It's blessed with the quality of an angel or a fairy. It fills the world with joy and happiness. The earth where human beings live appears to be a fairy place. Cuckoos like a devil
in that fairy place or a dreamland. This is a this is the best home for these natural elements. Thank you, dear students. Hope you enjoyed the lesson.